सपना था बचपन का कभी तो खुद का घर होगा, लेकिन जब विजन लॉस हुआ ना तब लगा था कि क्या कुछ नहीं हो पाएगा। अचानक सिर में दर्द होने लगा और कोई चक्कर आने लगा, गिर गई थी वो। उसके बाद उसको मैं हॉस्पिटल में लेके गया। बहुत से डॉक्टर के मैंने दिखाया उसको, तो डॉक्टर बोले उसकी नस सूख गई, बोले अभी कोई ये नहीं, बोले उसको दिखेगा ही नहीं, बोली। मुझे ऐसा लगा शायद मुझे दिख रहा है कि चावल जो सुखाए हैं वो मुझे दिख रहे हैं। सो मैंने हाथ लगाने का चेक करने की कोशिश की, बट वहाँ पे चावल नहीं थे, वहाँ पे पूरी जगह पे फर्श ही था। और तब फाइनली आई गॉट कि अब पूरा ही मतलब मेरा विजन जो है वो चला गया है। मैं बोलती थी भगवान मेरी आँखें ले लेता, मेरी बच्ची के रहने देती। फिर भी मुझे बोलती कि देखना भगवान ने कुछ नहीं किया। मैंने सबको देखा है, कई बच्चे तो बचपन के होते हैं मम्मा, उन्होंने तो माँ बाप को भी नहीं देखा होता। ये सब समझाती थी वो। जैसे भगवान ने लिया है, अगर उन्हें देना होगा तो वो दे देंगे। अब मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। जब विजुअली चैलेंज हुए तब मुझे चीज़ों को सुन कर और याद रख कर करना पड़ता था। चैलेंजिंग तो था ही कि और आगे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। We always assume that blind people know Braille. Statistically, less than 1% of the content is available in Braille, and more so, less than 1% of visually impaired people know Braille. I bumped on this idea of building something using my technology skills to empower a person with visual impairment with this little hand glove project of mine. It had obstacle detection sensors on the fist, and it also had a camera, so I could just point and it would read things. And there was this little boy who used it. He was super excited and he turns back to me saying, Didi, when can I get this? His question stayed with me, and I decided I will take this up as something that will help me leverage my tech skills into doing social good to empower persons with visual impairment. एक कंपनी है सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट आया साडे स्कूल च और साडे उत्ते आ ग्लव्स चेक कीते हैं कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। I started volunteering at a blind school, and trust me, for the very first time in my life, I see Braille books. I see blind and visually impaired kids. At that very moment, I contrasted it with the way I had access to content. I could pick up a book, read it at any point of time, but those kids, I felt, were limited by the knowledge that is there in those Braille books. I joined this pre-incubation center which is based in Nashik, Maharashtra, and that was actually where I also met my co-founder Bonnie, and both of us in our college days had worked on projects for visually impaired. One thing we were very sure about is we really want to solve this problem. A key decision-making point for us was when we met Dipali and got to know about that she was not born blind. Her dad asked her to go to a Braille school, learn Braille. लग रहा था कि ब्रेल का मटेरियल अगर अवेलेबल होगा तो मैं पढ़ पाऊंगी, या फिर मुझे जितना आता है ब्रेल उतना मैं लिख पाऊंगी। No college was ready to accept her, considering that they didn't have the right tools to address her needs. प्रिंटेड बुक्स दी जाती थी, उनको रिकॉर्डिंग करवाना है तो कहाँ से करवाएंगे? She had to go to an NGO, get them audio recorded on her own, which would take like 4 to 6 weeks for one 300-page book. I picked up all her books. We digitized all of it for her and gave it to her in the form of a mobile application. चित्रकूट में भारत के कई राज्य में थे। अपनी ननिहाल में
अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ। So Dipali is telling us this story, everything connected, saying that no, not all visually impaired people know Braille, so a Braille only solution would not suffice the mission that we are after, which is everybody should access content equally. We saw there was a gap wherein a lot of technologies which were being imported from Western countries did not support Indian, Asian and African languages. If a visually impaired person has access to content in real time in different languages, that's when they feel will be truly independent. So that's where this whole idea of making content accessible through audio, even if you know Braille or you don't know Braille, it just works for you. या पुस्तकाची जी स्पीड आहे ती काय बोलते मला कळत नाही, मी स्पीड कमी करते. So when we were actually building prototype, doing these user testing with Dipali of how the product is it working for her, and many iterations of the product. So we built a little prototype of a table lamp. You keep anything under it and it would read it out to you. Not just English, but Marathi and Hindi and handwriting as well. कोई भी मतलब टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट रख दिया, कोई जेरोक्स रख दिया, कोई फॉर्म रख दिया, या फिर कुछ भी जो भी कागज़ का टुकड़ा मिलता था हम लेकर स्कैन कर लेते थे. कि वो जब हाथ में आया तब लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं पढ़ सकती हूँ. कॉलेजों में दिव्यांगजन योजना के लिए दिशा निर्देश. 12वीं पंचवर्षीय योजना. Kibo is actually a short form for knowledge in a box, and it's also in Japanese it means hope, asha, umid. Today we are sitting in a country which has 22 official languages and 1500 to 1600 dialects. Western world cannot even imagine this kind of diversity, and the fact there is a technology which can aspire to cater to all languages is truly transformational. We just need to change the lens of charity and wear the lens of inclusion, and you will see everybody having access to same opportunities and same abilities as you have. Change is always difficult in the start, it's messy in the between, but it's beautiful in the end. Kibo has helped me to read the books that are available in the hard copy. It has built in a lot of confidence to probably attempt the different exams conducted by the government, as my bigger aim is UPSC. They open the inner eye of the visible literary world. They make everyone who reads it introspective. The future looks bright for all the visually challenged people like me, so they can better utilize this kind of tools, and they can read, they can work efficiently, they can read efficiently like me. The 4 to 6 weeks time which Dipali had to wait for to get her printed books audio recorded was now reduced to like minutes. So you can just flip through 100 pages and it will give you an MP3 in like minutes for the same. You don't have to wait for weeks. जो मेरी ड्रीम जॉब थी, मैंने कहा था कि मुझे पढ़ लिख कर जो है ऑफिशियल जॉब करनी है, वो ट्रेसल लैब्स ने मुझे प्रोवाइड किया. उसकी हिम्मत ज़्यादा थी. वो बोल रही थी मुझे घर में बैठने का नहीं, मुझे कंटिन्यू करने का. हमने देखा जो इसकी इच्छा होगी वो उसको पूरा करना है. कैसी बढ़ती गई ये तो हमको ही मालूम है ना. कितने उसने ठोकरें खाई, कितने दिक्कतें उसको आई,
उसको पार करते करते वो यहाँ तक पहुँची, तो उसके ऊपर तो मुझे बहुत गर्व है। She said, my dream is to buy a home for my parents because they live in a rented home today. She actually did the house warming puja of the new home. वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बेटा ही हूँ। बेटा जैसा घर के लिए कर सकता है तो बेटी नहीं कर सकती क्या? Equal opportunities in jobs is the single most goal for Ranganath, for Vatsala, for Dipali, who 5 years ago when we met them were in that early stage, education, equal opportunities. We've seen that journey of theirs where when given the right opportunity, right access to content at the right point of time, they can really lift themselves up and their families to a really economic strong position. Independently scan any books, hard copies, any documents which I want to read. Without anybody's help, now I can independently read. The work of Akshadan Boni are really great. They have done a really good job by taking this initiative, by helping a lot of visually impaired to achieve their dreams. देश को समर्थ बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए, हम पे बिलीव किया जाए और हमें एक मौका दिया जाए। हम ज़रूर उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बस हमें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ऑटिज्म स्क्रीनिंग को हमने 1250 बच्चों पर वैलिडेट किया है और वो 98% एक्यूरेसी से बताती है कि बच्चे एट द रिस्क ऑफ ऑटिज्म है नहीं। तो मैं जो इतना समर्थ हूँ इस बोलने लायक, तो दैट्स बिकॉज ऑफ हिमांशु सर। Ready? Take your marks. Go. शाबाश 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 लड़के शाबाश। सबसे ज़्यादा खुश पानी में ही रहता है वो तो 1 से 2 घंटे करता है, फिर भी बोलता है थोड़ा और थोड़ा और। And once I started, I liked the water. I liked the freedom that I got. My name is Vivansh Adleka and I am 15 years old, and I am proud to tell that I am the best para-swimmer of India and also the youngest ethical hacker of India. रिवांश बाय बर्थ डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इसको सेरेब्रल पॉल्सी की प्रॉब्लम है। मेरा बेटा जब 1 साल का था तो ये गर्दन नहीं संभाल पा रहा था, इसको क्रॉलिंग की प्रॉब्लम थी, इसके हाथ ऐसे बिल्कुल टाइट रहते थे, गर्दन ये नहीं संभाल पाता था कुछ भी अपने आप को। तब से फिर हम डॉक्टर्स को हमने दिखाना शुरू किया, परंतु हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। हर आदमी अपनी तरीके से बताता है कि ऐसे बच्चे तो 10 साल जिएंगे उसके बाद मर जाते हैं, इन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। इनके बाप गूंगा और माँ अनपढ़ है, तो ये वीडियो कॉल तो बतलाऊँ से तो यो न्यू करा कर तो न्यू तो मैं तो नहीं जानी थी वो भी गुम हो रहे जब। एक काइंड ऑफ हेल्पलेस काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है कि वो बोल रहे नहीं ये इसकी ये प्रॉब्लम है, एंड सिंस यू आर नॉट एक्सपर्ट तो आप जज नहीं कर पा रहे कि वो सही बोल रहा है कि यू नो कि गलत बोल रहा है, राइट। तो एक कहीं ना कहीं एक हेल्पलेसनेस थोड़ी सी रहती है। जब लगभग मेरा बेटा 3 से 4 साल का था तब हम डॉक्टर हिमांशु से मिले। वो हमारे बच्चे को एज ए अपना बच्चा ट्रीट करते हैं, और जो भी आज हमारा बेटा है वो उसमें डॉक्टर हिमांशु का एक बहुत बड़ा रोल है। मेरे लिए and for people like me, he is doing everything to his capabilities. Himanshu sir makes me also laugh, and
for other kids also, he makes them feel happy. So he is a fantastic therapist, I can say. बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हांसी, जहाँ पर बेसिकली एजुकेशनली अगर हम बात करें तो उतने कॉलेजेस उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, तो बट आई वांटेड टू डू सम कोर्सेज इन मेडिकल साइंसेज, तो मैंने MBBS के लिए सोचा। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने बैचलर इन फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया सो डैट कि मैं मेडिकल साइंस में जो मैं करना चाहता हूँ वो कर भी पाऊँ और बच्चों के साथ काम भी कर पाऊँ। जब मैं काम करता था तो जब बच्चा पहली बार कुछ अचीव करता था, वो पहली बार हंसता था, वो पहली बार बोलता था, या पहली बार वो स्कूल जाता था, तो वो एक बहुत ही इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता था, जिससे मुझे हर वक्त हर दिन वो मोटिवेशन मिलता था कि मुझे इसी फील्ड में रहना है। जब हमने पीडियाट्रिक्स में काम करना स्टार्ट किया था 2008 में, तो उस वक्त चैलेंजेस काफ़ी थे, आइडेंटिफिकेशन काफ़ी लेट होता था, दूसरा एटीट्यूड का भी बहुत ही चैलेंजेस थे। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे OPD में आते हैं, बोलते हैं कि हमें मालूम है कि बच्चे में कुछ चैलेंजेस हैं और हम आपके पास हेल्प के लिए हैं, बट वी डोंट वांट टू टेल एनीवन। स्टार्टिंग से ये चाहते थे कि हर बच्चे को हम टाइमली आइडेंटिफाई करें ताकि हम उसको बेस्ट पॉसिबल इंटरवेंशन उसी फ्रेम में दे पाएँ जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा सीखता है। I met Himanshu around in 2014-15, and then we just put our heads together that we should do something big to empower the family and the kids who are struggling, whether this is physically or mentally. Then we started up this Cognable. आपको मेरे कुछ बेसिक डिटेल देनी होगी बच्चे की, जिसको मैं फिल करूंगा, उसके बाद हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे। क्या आपका बच्चा बेसिक जो चीज़ होती है उनको फॉलो करता है? जैसे कि मैं उसको ऐसे करके दिखाऊंगा, अगर हैंड्स अप, बस मैं इसको ओरल बोलती हूँ तो फिर ये करता है इस तरह। अच्छा, वैसे इमिटेशन मतलब नहीं, ऐसे नहीं मैंने करता है। We sorted out our screening tools, for autism and for development delays. तो ऑटिज्म स्क्रीनिंग को हमने 1250 बच्चों पर वैलिडेट किया, तब वो 98% एक्यूरेसी से बताती है कि बच्चे एट द रिस्क ऑफ ऑटिज्म है नहीं। So we do an assessment based on the curriculum, which is a verbal behavior assessment, and then we see that what are the goals and gaps that a child is having, and we curate a program based on the individual capacities of a child. जो Cognable ऐप है उसमें plans are very comprehensive, which means कि the instructions are mentioned step by step, including what tools to use. कोग्निबल के अभी 12 लोकेशंस पे फिजिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। हम पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो थेरेपेटिक केयर घर पर भी कर पाएँ। वन रूफ के नीचे बच्चों को सारी थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ABA थेरेपी और ADL हो गया, हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन हो गया। सो रिया को हम लास्ट 2 ईयर से देख रहे हैं। तो रिया हमारे पास कुछ मोटर चैलेंजेस की कंप्लेंट के साथ आई थी, लाइक उसे बैलेंस करने में दिक्कत होती, वो चलते हुए गिर रही थी। तो डॉक्टर जैन ने डायग्नोस किया कि उसे वैन डर लैप सिंड्रोम है, जो कि एक रेयर कंडीशन है। कॉग्निटिव एबिलिटीज भी थोड़ी कम होती हैं, बट ये बच्चे ट्रेनेबल होते हैं। Therapy, like he used to make me walk properly and like so that I can walk alone, go with my friends out. My favorite therapist is Himanshu sir. मेरा and Himanshu sir का जो bond है वो अच्छा है। जैसे बच्चे के साथ काम करते हैं, प्ले मेथड के थ्रू करते हैं, जैसे बोरिंग महसूस करते हैं हम उसको चेंज कर देते हैं। तो केयर के लिए एक थेरेपिस्ट और कई बार जिस बच्चे को ज़रूरत है तो वहाँ आपको 3-3, 4-4 थेरेपिस्ट भी दिखेंगे। अभी बच्चे हैं, अभी अपना बॉडी वेट संभाल नहीं पाते, चल नहीं पाते। आज भी ये लगभग 15 साल का है, इसकी बॉडी का आधा पोर्शन काम करता है, आधा पोर्शन नहीं करता। एक साइड काम करती है इसकी, एक साइड नहीं करती। तो हमने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि हाइड्रोथेरेपी करना चाहिए। हाइड्रोथेरेपी एक एविडेंस बेस्ड थेरेपेटिक केयर है जिसमें हम पानी में बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं ताकि उसकी मसल्स को बायोएंसी फोर्स से उसको हेल्प मिले और वो अच्छा कर पाए। My mother just came inside the water and herself taught me the swimming. लेकिन उन्होंने पहले खुद से सीखा, फिर हिमांशु सर से गाइडेंस ली कि किस मसल पे कितना स्ट्रेन देना चाहिए। कई बार मैं रात को 10 बजे फ्री होता था या 10:30 फ्री होता था, तब भी मैं उसका सेशन लेता था। It was November, like एकदम चिल्ड कोहरे में रात को 12 बजे
हिमांशु सर 11 साढ़े 11 बजे मेरे घर आ रहे हैं एंड रात को 1:30 बजे वो मेरे घर से जा रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु ने हमें ए से एक्सरसाइज सिखाई है, चाहे वो हैंगिंग की है, चाहे वो बॉडी वेट की है, जो भी भैया हमें समझाते हैं हम एक्सरसाइज की प्रॉपर यहाँ पे भी करते हैं सेंटर पे और घर जाके भी करते हैं। इंडिया में काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे एक्सेस टू दी सर्विसेज नहीं है या फिर अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं है, और अगर कहीं है भी तो उसका एक कॉस्ट भी है। तो कोग्निबल का मिशन था कि हम कुछ ऐसा बनाएं जिससे बच्चे अच्छी सर्विसेज को एक अफोर्डेबल प्राइस में पा सकें। देन वी रियलाइज कि इसको बहुत ही तेज़ी से भारत में फैलाने की ज़रूरत है, इस अवेयरनेस को कि कैसे बच्चों को डिटेक्ट किया जाए। तो जो शुरुआत में चैलेंजेस देखा जाता है जो गांव में, तो उनके ये वर्ड्स होते थे कि इसके दादा लेट बोले थे, इसके पापा लेट बोले थे, तो ये भी लेट बोलेगा। मैं हूँ। जब कोई बच्चा पहली बार बोलता है तो हमने कई बारी पेरेंट्स को रोते हुए देखा है। हमारा बच्चा 5 साल से हमने मम्मा पापा नहीं सुना था जिसके मुंह से वो आज बोला। यो ताता पानी के भगोना में जा पड़ा तो इतना ये सारा जल गया था, जिसके बाद वो बिल्कुल ही शौक में है, उसके बाद वो बिल्कुल ही नहीं बोलता। शायद तो हमें लगा कि शायद वो एक बैरियर था जिसके बाद वो इतना डर गया है या सहम गया है। बस फिर ये घर लेगा, फिर मैंने इसकी सहायता मिली जब मैं यहाँ लेके आई। ये कौन है? दीदी। दीदी क्या कर रही है? बॉल से खेल दिया। वेरी गुड, गिव मी हाई फाइव, हाई 10, लो 10। तो इसी हर एक चीज़ बोलने लगता। मैं तो आज बड़ी खुश हो रही हूँ, झूठ ना बोलूँ तो मैं तो काल जो पाड़ के दिखाई ना जा। बेटा को बेटो इतना बोल रहे हो, मेरे मतलब मेरी सफल होगी, कमाई सफल होगी, हांड गोल पूरी होगी। बच्चों को अपना बचपन जीना चाहिए। इंक्लूजन का मतलब ये है कि हमें हर बच्चों की तरह उसे खेलने में, स्कूल जाने में, सोशल गैदरिंग्स में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हर अपॉर्चुनिटी उसे बाकी बच्चों की तरह बराबर मिलनी चाहिए। मेरा बेटा देश के लिए खेलेगा और देश के लिए, ये अपने जैसे बच्चों के लिए, ये जीवन में जो भी बनेगा ये अपने जैसे बच्चों के लिए काम करेगा। तो वो पैशन से मैंने 2022 में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप खेला एंड वहाँ पर मेरा पहला नेशनल गोल्ड आया जिसने मेरी हिम्मत को इतना बढ़ाया। नाउ इन 2024 आई हैव 6 गोल्ड मेडल्स इन स्विमिंग इन 1 year. I believe that my disability is never my limit and I have to prove my strength. I have to make my country, my parents and my society proud, and I want to showcase my abilities at the global stage. डॉक्टर हिमांशु सर से नहीं मिला होता तो मैं अंधेरे में जी रहा होता। अंधेरे में उन्होंने मेरे को एक दीपक दिखाया, रास्ता दिखाया। वी बिलीव कि हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज अलग होती हैं, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, तो हर बच्चे को उसकी नॉर्मल स्पीड पे सीखने का मौका मिलना चाहिए, उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एक रिसेप्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके और वो समर्थ हो सके अपनी एक्टिविटीज़ को अपने आप से करने में और देश के लिए कुछ करने के लिए। Himanshu sir have made me more समर्थ and capable. I am brave and I am samarth. Driven by innovation and inclusion, these change makers are redefining what's possible for people with disabilities, unlocking access, independence, and opportunity through assistive technology and personalized support. Their vision aligns deeply with Samarth by Hyundai's commitment to breaking barriers, advancing equal opportunity, and building a more accessible future for all.